Hello, my dear friends. How are you? All of you are fine. Today's video we are dealing with 1.6 active voice and passive voice. We discussed the course outcomes also in previous video that you should construct your own sentences without any grammatical errors. You should use relevant verbs, appropriate verbs for constructing sentences, as well as you should know what is the difference between active voice and passive voice, what is mean by active voice, what is mean by passive voice, how to identify active voice, how to identify passive voice, and how to change active to passive and passive to active, as well as its real function. Okay, as well as examination point of view, the same topic will ask in question number 4E. Okay, for 4 marks. Change the voice. The same things we discussed in last video. As well as we are discussing active voice. Active voice means basically it is a form of verb. It is a transmission of action from subject to object or object to subject. Okay, in active voice, subject is doer. Subject perform the action upon the object. Okay, subject is active, that's why it is called active voice. Function, we want to give emphasize, we want to give highlights important to the subject in that sentence. Structure, subject plus verb plus object a complement. Have you got it? Then passive voice. Passive voice means in the passive voice, subject is not important. Subject is not doer of action, but is a receiver of action. Action is important. The action is performed by object upon the subject, where action is important. Okay, that's why it is called passive voice, and it is given by to be plus verb past participle. We add some power in verb, that is by to be plus verb past participle. It is called passive voice. Structure, subject plus to be plus verb past participle plus complement plus by plus object and full stop. Okay, what is the function of passive voice? Passive voice denotes subject is not important but action is important. Subject is a receiver of action, and it is denoted by to be plus वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. जिस सेंटेंस में to be plus वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होगा वो सेंटेंस कौन सी वॉइस में है? पैसिव 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 वॉइस में ये. और जिस सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट जस्ट वर्ब सिंपल है वो कौन सी वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस क्या डिनोट करता है? सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. पैसिव वॉइस क्या डिनोट करता है? एक्शन इज इम्पॉर्टेंट. वॉइस क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. In another word, it is a transmission of action from subject to object or object to subject. Have you got it? Structure समझ में आया? V या to be plus verb past participle. Subject to object, object to subject. V ऐड करना है, to be plus past participle या रिमूव करना है. एक्टिव वॉइस क्या डिनोट करता है? सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. पैसिव वॉइस क्या डिनोट करता है? एक्शन इज इम्पॉर्टेंट. सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एक्शन. Is it clear? We have no rights when we change active to passive या passive to active. हमें एक्शन चेंज नहीं करना है, हमें टाइम नहीं चेंज करना है, हमें मीनिंग भी नहीं चेंज करना है. हमें क्या दिखाना है? ओनली कि इस सेंटेंस में बाबा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस सेंटेंस में एक्शन इम्पॉर्टेंट है. दूसरा कुछ भी यूज़ है क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का? बिल्कुल नहीं. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे पहचानोगे आप? उसमें सिंपल वर्ब है तो वो एक्टिव वॉइस हुआ. उसमें टू बी प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है तो कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है. टू बी कौन कौन से है? एम इज आर, यह प्रेजेंट टाइम के टू बी है. वॉज वेयर, यह पास्ट टाइम के टू बी है. बी यह सिंपल फ्यूचर का टू बी है. बीइंग यह कंटिन्यू टाइम का टू बी है. और बीइंग ये क्या है? परफेक्ट टाइम का टू बी है. वी विल डिस्कस द सेम थिंग्स नेक्स्ट. ओके, समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर हुआ? फॉर्म ऑफ वर्ब, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन. स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? फंक्शन क्लियर हुआ?
So active voice denote subject is important and passive voice denote subject is not important, action is important. Have you got, समझ में आया आपको? Have you got it? Next, now we are discussing conversion of active voice to passive voice. Here assertive sentence, one by one we will discuss the same things. First we are discussing assertive sentence, second we are discussing interrogative sentence, and third we are discussing imperative sentence. First, when the active voice is changed into to the passive voice, what we are doing? First, the sentence must have object. When we want to change active to passive, at that time the sentence must have a object. How to identify object? Ask the question, start from what and whom to subject and verb. Okay, if the answer comes from what, then it is called direct object, and if the answer comes from whom, then it is called indirect object. Okay, object there should be compulsory. If there is no object, then we assume they, okay, as a object. The place of subject and object is interchange. सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट? आस्क द क्वेश्चन टू सब्जेक्ट एंड वर्ब, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट एंड हुम. व्हाट से आंसर आया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम से आंसर आया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड क्या करते हैं हम? देखो, प्लेस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इंटरचेंज. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ओके, पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब का, वो वर्क एज अ सब्जेक्ट. Second, past participle of form is always used in the sentence of passive voice for all the tenses. It is very important because हमें एक्शन को इम्पोर्टेंट दिखाना है पैसिव वॉइस में, इसलिए वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ऑलवेज प्रेजेंट. क्या करना है हमें? उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल उस वर्ब में ऐड करना है, उस सेंटेंस में ऐड करना है. यदि उस सेंटेंस में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल नहीं है तो पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं है. एक्टिव वॉइस में सिंपल वर्ब रहता है, तो पैसिव वॉइस में टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल दोनों का दोनों रहना चाहिए. इज इट क्लियर? वर्ब पास्ट पार्टिसिपल मस्ट बी प्रेजेंट. Third, the word by is used before object in the sentence in passive voice. और by क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के पहले हमने by यूज़ करना चाहिए. मतलब वही है, सब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो रहता है उस सब्जेक्ट का काम करता है. उसके बाद टू बी प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं हम, उसके बाद बाय लिखते हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज करते हैं. बी केयरफुल, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए. इंटरचेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, एंड ओके, ऑब्जेक्ट वर्क एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. पास्ट पार्टिसिपल टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐड करना है एज पर द टाइम. प्रेजेंट हुआ तो एम इज आर, पास्ट हुआ तो वाज वेयर, फ्यूचर हुआ सिंपल फ्यूचर तो बी, कंटिन्यू हुआ तो बीइंग, एंड परफेक्ट हुआ तो बीन. ओके, एंड वो बाय ऐड करना है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस. किस प्रकार प्रोनाउंस जो चेंज होते हैं, मतलब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होना है या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हमें चेंज करना है तो किस प्रकार होगा? देखो, फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. इन एक्टिव वॉइस में आई एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी आएगा. वी का वी, अस, यू यू, ही हिम, शी हर, इट they them. We can change subject to object these pronouns. I repeat, I as active voice work as a object in passive voice me. We work as a subject in active voice, it work as a object in passive voice because interchange करना है ना हमें subject to object और object to subject. we का we रहता है, he का him, she का her, it का it, and they का them. हम interchange करते हैं एक्टिव टू पैसिव करते समय या पैसिव टू एक्टिव करते समय. देखो, टेंसेस में भी किस प्रकार चेंजेस होता है, बिकॉज वॉइस इज नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब. हमें मालूम है, डेफिनेशन हमें मालूम है, वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट रहता है. इट इज़ अ सोल ऑफ सेंटेंस, वो मदर है उस सेंटेंस का, इसलिए वर्ब में क्या चेंजेस करते हैं. तो देखो किस प्रकार तुम सी, टेंस सिंपल प्रेजेंट है. ही राइट अ लेटर. ओके, ही राइट अ लेटर, राइट, ही राइट्स.
Okay, he writes it is a free one. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज स्ट्रक्चर. सेम सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करेंगे, देखो. सी हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस. अ लेटर इज रिटन बाय हिम. देखो क्या किया हमने, ही की जगह पे अ लेटर, क्या किया हमने, ही की जगह पे अ लेटर यूज़ किया. वो जो सब्जेक्ट था वो एज अ वर्क एज अ ऑब्जेक्ट ही हो. ओके, अ लेटर ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे राइट है, इसलिए प्रेजेंट टाइम का हमने टू भी यूज़ किया. एम इज आर प्लस वी टू, मतलब वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. राइट, रोट, रिटर्न. वर्ब पास्ट पार्टिसिपल हमें यूज़ करना है रिटर्न. एंड कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बाय लिखना है, और वो सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. मतलब देखो, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन. अ लेटर क्यों यूज़ किया, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है. लेटर इज रिटन, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल से क्या होता है, एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैसिव वॉइस में इज क्यों लिया है, बिकॉज राइट से प्रेजेंट टू प्रेजेंट ही करना है हमें, प्रेजेंट टू पास्ट नहीं कर सकते. मेन वर्ब का वर्ब पास्ट पार्टिसिपल रिटन. कॉम्प्लीमेंट है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं. बाय यूज़ किया और ही का हिम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया. मतलब सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज स्ट्रक्चर. प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा तो सेम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे. बट वहाँ पे क्या यूज़ करना है, टू बी में बी प्लस मेन वर्ब, बीइंग प्लस मेन वर्ब, आई मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. देखो, सी इज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. सी एज अ सब्जेक्ट, इज कंप्लीटिंग, इज यह प्रेजेंट टाइम है, कंप्लीटिंग यह कंटिन्यूस है टाइम. द प्रोजेक्ट इट इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस में क्या होगा, द प्रोजेक्ट, क्या किया हमने, व्हाट व्हाट इज सी कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. whom इज सी कंप्लीटिंग नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो प्रोजेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया. इज बीइंग, इज क्यों यूज किया बेटा, इज है ऑलरेडी वहाँ पे. बीइंग, बीइंग मतलब हमें कंटिन्यू का कंटिन्यू ही रखना है, हमें कंटिन्यू का परफेक्ट नहीं करना है. वी हैव नो राइट्स टू चेंज इट फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट या पास्ट टू प्रेजेंट, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, बीइंग. बीइंग इट डिनोट एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन इज नॉट एट कंप्लीटेड, इसलिए सब्जेक्ट द प्रोजेक्ट इज बीइंग कंप्लीटेड, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल हमने यूज़ किया कंप्लीटेड. कॉम्प्लीमेंट है क्या, नहीं है, बाय यूज़ किया और शी का हर. मतलब स्ट्रक्चर क्या हुआ है बेटा, सब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट, एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट इन फुल स्टॉप. यह प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या यूज़ किया हमने, क्या यूज़ किया, एम इज आर. यहाँ पे कौन सा यूज़ किया, एम इज आर ऑलरेडी है, इसलिए बीइंग वो कंटिन्यू है, इसलिए बीइंग वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल चेंज किया, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. नेक्स्ट, परफेक्ट. परफेक्ट, दे हैव डन द वर्क. हैव डन कौन सा टाइम है बेटा, परफेक्ट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम. क्या किया हमने, सब्जेक्ट है उसमें, हैव और हैज़ रहता है, प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल उसमें ऑलरेडी रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है. तो हमें यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, टू बी ऐड करना है. देखो, द वर्क मीन्स ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, व्हाट हैव दे डन द वर्क. whom हैव दे डन नहीं आ रहा है, तो द वर्क इट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द वर्क हैज़ बीन डन. बीन क्या यूज़ किया बेटा हमने, परफेक्ट टाइम का टू बी. ओके, एम इज आर प्रेजेंट टाइम, वाज वेयर पास्ट टाइम, बी फ्यूचर के लिए, बीइंग कंटिन्यू के लिए, और बीन किसके लिए बेटा, परफेक्ट टाइम के लिए. सब्जेक्ट द वर्क हैज़ बीन डन, हैज़ बीन, हैज़ क्या डिनोट करता है, परफेक्ट. बीन क्या डिनोट कर रहा है, टू बी. डन क्या डिनोट कर रहा है, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, बाय देम. मतलब स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. इस प्रकार हम चेंज करते हुए सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐड करना है या रिमूव करना है, दूसरा हमें कुछ भी नहीं करना है. एक्टिव वॉइस क्या डिनोट करता है, एक्शन इज इम्पॉर्टेंट. एक्टिव वॉइस क्या डिनोट करता है, एक्टिव वॉइस डिनोट्स सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, पैसिव वॉइस डिनोट्स subject is not important, action is important. To be plus past participle. Okay, next,
simple past. Okay, simple past v2 already, subject plus v2 plus object. He wrote a letter. यहाँ पे v1 है नहीं, सब्जेक्ट प्लस v2 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव किस प्रकार होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, मतलब ओ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर होना चाहिए वहाँ पे, प्लस v2 प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट. ओके. ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, we will discuss the same things in next video also. Okay, next video we are dealing with the same things. I hope you can understand it. Okay, thank you.